मैं हूं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ट्रेंडिंग रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप चैनल में पहुंच चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और शेयर कर दें अगर आपको रिएक्शन अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल IMF cuts India's GDP growth to 5.9 from 60.1 for falling year 2024। देखते हैं क्या वीडियो में एक्सप्लेन, फिर पता चलेगा, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। IMF has lowered India's economic growth projection for the current fiscal to 5.9% from 6.1% earlier. Yet India will continue to be one of the fastest growing economies in the world. In its annual World Economic Outlook, the IMF also lowered the forecast for 2024-25 fiscal to 6.3% from 6.8% that it had predicted in January this year. With IMF growth forecast, it's lower the projections also given by the Reserve Bank of India, where RBI sees a 6.4% GDP growth in the current fiscal that started on the 1st of this month. Despite a significant drop in the growth rate projections from 6.8% in 2022 to 5.9%, India, however, continues to be one of the fastest growing economies, as China's growth rate is also projected to be at around 5.2% in 2023 and 4.5% in 2024, against its growth rate of 3% in 2022. On the surface, the global economy appears to be poised to a gradual recovery from the powerful blows of the pandemic and also Russia's unprovoked war on Ukraine. Now, if we talk about the Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal has invited the French businessmen to invest in India, highlighting ways to further deepen the India-France partnership and to realize the tremendous opportunities it offers. As Piyush Goyal and Olivier Becht of France's minister, a delegate of the Foreign Trade Attractiveness and French nationals abroad, co-chaired the India-France Business Summit commemorating 25 years of India-France friendship on Tuesday in Paris. We're joined now by Union Commerce Minister Mr. Piyush Goyal, who's here in Rome. Mr. Piyush Goyal, you've had engagements with different companies today. How has the trip been so far? And in terms of the actual investments or the economic developments of this particular trip, how are you looking at this entire tour? Well, it's been a very exciting day. A lot of meetings with serious investors who are looking at India for significant engagement in the months and years to come. Encouraging investment and trade is a process. You don't have a switch on off that you have a meeting today and tomorrow things start. But certainly the interest that we've been able to generate, both through the many bilateral meetings that I had, through our business summit, India-France Business Summit, and finally through the CEO roundtable with 40 top companies from India and France. All of it put together have clearly demonstrated that France and French companies are looking at engaging significantly with India. They're looking at India as a base of growth for Africa, for Southeast Asia and other parts of the world. They see the large Indian domestic market, and they also see that with the huge talent pool we have in India, they'll be able to get goods and services back to Europe at more affordable prices. Right. So two questions related to your department. One is, there's been speculation in the UK media regarding the UK free trade agreement. Where do things stand? Is there a go slow? And secondly, how do you see the IMF, whose projections have been lowered slightly? Well, we don't comment on speculation. And I think we've had enough and more news coming out through the last year and a half on the India-UK negotiations. The negotiators are doing their job. I think the press is only looking for headlines. Yes, and what about IMF, sir? What about the IMF? Projection, the lowered projections that have come in today? How do you see that? I think the IMF keeps giving projections which they keep increasing, then they keep reducing. We are confident about our performance. We are confident about the good work that is happening in India. We can see the energy when we are talking to Indian industry, when we are talking to international investors. The enthusiasm is truly palpable, and therefore I think we'll allow our own bodies like the Reserve Bank of India and our Ministry of Finance and its arms, our economic advisor, and all of them to make the right projections. And as you might have observed, they always make very consistent, steady projections. They don't go drastically up and drastically down, which is actually unnecessary. नुकसान में ये है इंडिया की
ग्रोथ करने का मेरी आंखें और फटी कामयाबी का ये जो ग्राफ है ना, ये पूरे वर्ल्ड में और IMF ने ये निकाला है। तो जब ये सारी कंट्रियां इंडिया के नीचे है तो ये सबूत है कि इंडिया 2023-24 तक कितनी ग्रोथ रेट में है और भाई, कितनी तरक्की कर रहा है। 2024-25 का जो सारी दुनिया, सारी चाइना उसके नजदीक है, एक वैध मुल्क है जो करीब तरीन है, जो करीब, इसलिए तो वो S जयशंकर साहब बोलते थे कि ये जो सदी है, ये जो ईयर है, ये एशियन सेंचुरी होनी हाँ चाहिए। जी, एशिया सेंचुरी। और यार मेरी बात ये है, जिधर गौर करने वाली देखें यार चाइना को बीट कर कि जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इन्वेस्टर्स है, वो खुद सीरियसनेस दिखा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हम हमारे मुल्क में या हमारे तो ये केस है कि हम तो कहते हैं फिर भी हम तो खैर बीक पर हम बात ही छोड़ें। उधर के जो बड़े हैं ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो खुद आकर उनके जो है ना इंडिया की गवर्नमेंट के उनके मिनिस्टर के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हम फलां कंपनी में आपके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दुनिया की बड़ी कंपनी है वो ग्रोथ रेट देखती है कि किस हाँ मुल्क का ग्रोथ रेट इस वक्त हाई सबसे है। ज्यादा है। जो इस वक्त जो सारी कंपनी है वो इंडिया का रुख करेंगी। ये इस ग्रोथ रेट से जब इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है तो सारी दुनिया ही इंडिया का रुख करेगी। तो भाई हमें फिर डर वो भी आ जो रहा है। बातें हैं कि 2026 तक या 2024-26 तक कह रहे हैं कि इकॉनमी बन जाएगी दुनिया की तीसरी, तो वो नजर भी अब आ नजर रहा है। आ रहा है उस हाँ, तरह हाँ, उस ये तरह बात हो दुनिया सकती बढ़ है है, भाई जो गुलजार। इंडिया बढ़ रही है भाई। भाई गुलजार, ये बात हो सकती है कि जहाँ आती है ना बात कि हम 2025 या 26 में तीसरी इकॉनमी की बात करें या दूसरी की कर लें, ऐसे अंदाज़ा तो वाकई हर मुल्क लगाता है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं ना, यहाँ तक हमारा टारगेट बनता है। जैसा कि चाइना ने कहा था कि हम 2024 में सुपर पावर बनेंगे, इकॉनमी के लिहाज से नंबर 1 बनेंगे। तो वो बीमारी की 2024 वजह में से चाइना ने बोला था 24 या 25 यहाँ पर कहीं 25 का आगे बता दो। अच्छा, तो वहां पर वो मार कहाँ खा गए? मार वो कुदरत की जगह से खा गया कि उन पर वायरस आया और उसकी वजह से ना मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा हुआ मेरे भाई। तो अच्छी बात है जब आप तरक्की करते हैं, जब आपका मुल्क डेवलप होता है तो मेरे भाई यार सुपर पावर जो है ना, उसकी भी इतनी नहीं ग्रोथ रेट, उसकी भी बहुत मामूली सी थी भाई। यार। मैंने यही बोला है कि पूरे जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो इस वक्त इंडिया का रुख कर रही है। ये नहीं कि चाइना या अमेरिका का, वो बोल रही है कि जो ग्रोथ कर रही है पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया ही है। दो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की है। तो इससे यही पता चलता है कि इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। जब चीज़ नहीं उठती है ना मेरे भाई, जब नए लोग मेहनत करते हुए ज़रा जोश से ऊपर आ रहे होते हैं, तो मेरे भाई हर आदमी की नज़र होती है कि इनकी तरफ देखें, इन्हें देखें ये क्या कर रहे हैं और यहाँ पर पैसा और इन्वेस्ट उसको करें। इंडिया पर ट्रस्ट भी कर रही है जो मैं एक मिसाल देता हूँ आम रोजमर्रा जिंदगी में अपने गांव से ही। हमारे गांव में पैसे का ट्रेंड बना और लोग बाहर जाना शुरू हो गए। तो आज देखें कितनी दुनिया, इतने कितने लोग हमारे इधर से जा चुके हैं। मतलब क्या, सबका ट्रेंड यही है कि हमने बाहर जाना है, पैसा कमाना और अपनी इज्जत बनानी है। यही माइंडसेट, इसी तरह का ट्रेंड बन गया बाकी कंट्रीज का, इन्वेस्टर का, कि इंडिया में सब कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उधर से आ रहा है सबको फायदा, तो फायदा की तरफ दुनिया जाती है। तो वो सारे इन्वेस्टर अब आ रही है, चाइना से ज़्यादा अब उनको मिल रहा है इधर सस्ती हर चीज़, मतलब म्यारी भी मिल रही है, बेहतर भी मिल रही है। इसलिए वो आज iPhone 14 Pro Max वो इधर असेंबल हो रहा है नोएडा में, आपको बहुत बड़ी फर्म में दिखाई गई थी। कितनी वीडियो मैंने उसके ऊपर भी देखी की है। एक IMF पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है 1 बिलियन के, दे नहीं रहा और भैया भी नहीं दे रहा। इतने सालों से वो, इतने महीनों से वो उनके भी खुद कह रहे हैं, मिन्नतां कर रहे भाई हैं। सुभाष जी कह रहा है कि मैंने हमसे नाक की लकड़ियां निकलवाई हैं, खुद कह रहा है, ऑन ईयर आके कह रहा है। और एक तरफ IMF इंडिया कह रहा है कि दुनिया की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। सबसे मैं जो फिगर देख के हैरान परेशान हो गया हूँ कि इतने इतने अमीर मुल्क भी उसकी ग्रोथ रेट ही नहीं है यार हाँ, दुबई हम समझते हैं बड़ा तेज है, या सऊदी अरब यार बात ये है, जहाँ तक कोई भी पाकिस्तान की बात आती है ना, तो इस वजीर आज़म जो हमारा अभी वजीर आज़म, मैंने उसे गौर से कभी उनकी स्पीच देखे, ऐसा नहीं लगता कि किसी मुल्क का वजीर आज़म ये स्पीच कर रहा है। ऐसा लगता है कोई बच्चा पकड़ के माइक के सामने कर दिया है और उसे पेपर दिया गया है और वो भी उसे ठीक से पढ़ना नहीं आता। ऐसे नलायक बच्चा, हाँ जी, ऐसे उसके बच्चों ऊपर से पर देख के मेरे पेपर भाई नहीं आता। सीरियस बड़े आदमी जो होते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते ना, उसकी बात को सीरियस से लेते हैं। लीडरशिप अच्छी होती है, इंसाफ होता है, मुल्क ग्रो करता है, तो मेरे भाई इन्वेस्टर आते हैं। ये तो बात फिर होती है। इंडिया का जो सीना ना वो गर्व से भी इस वक्त चौड़ा हो चुका होना भी चाहिए। जब पाकिस्तान का ये ग्रोथ रेट होगा ना तो हमारे भी सीने भी चौड़े हो जाएंगे। हमारा भाई इसको हमारा चल रहा है, हमारा भी किसी दुनिया में मकाम है, हम भी इज्जत से बोल सकते हैं।
पर नहीं, अब ये दौर जो है ना वो इंडियन लोगों का है, वो कैसे भी बोलेंगे भाई वो उनका भाई दौर ये है। उनकी अपनी मेहनत का सिला, ये उनके अपनी मुश्किल वक्त में से निकल कर अब उनको वक्त आ गया भाई अरूज का, अब वो जाएंगे और उनको रोकने वाला कोई नहीं। जो किसी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उनकी डिप्लोमेसी, उनकी जो पुलिस है वो बड़ी अच्छी है। तो ये उनके जो जारी बात है, जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको मिलता भी अच्छा है, बस यही फ़र्क है। अच्छाई फैलाएंगे तो अच्छाई मिलेगी। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।